A very good morning, children. Children, this is your English period. So, kindly take out your English reader books and open page number 78. Alright, open page 78. We were doing the exercises, book exercises of chapter 8, Ace Swimmer Mihir Sen. So, children, yesterday we completed page number 76, 77, right? We did this. I hope you have completed all the work. I hope you have completed all the work, beta, on page 76 and 77. We did this exercise yesterday, all right? So, moving further, we will do page 78 today. In this page number, grammar glee, what is it says? Grammar glee. So, we will study about the language portion in this page, all right? So, the topic is continuous tenses. So, as you have, children, already learned in your grammar, right, simple present tense, about present tense, then parts of present tense, what are the kinds of present tense, simple present tense, है ना, present continuous tense, present perfect tense, you might have learned. So, present continuous tense we have covered in the grammar portion. So, in this exercise about continuous tenses, so what are continuous tenses? Beta, continuous tenses क्या होते हैं? Continuous means an action which is on progressive mode. मतलब ऐसे actions जो चल रहे हैं, या तो present में चल रहे हैं बेटा, या तो past में चल रहे थे, वो actions हो रहे थे past में, या फिर ऐसे actions जो future में चलेंगे in continuous. यानी continuous means कंटिन्यू करना कोई चीज, प्रोग्रेसिव में होना. ऑल राइट. सो 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेज आर देयर बेटा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, राइट. सो 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेज आर देयर. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. So, present continuous tense क्या होता है बेटा? Present continuous tense is that tense in which actions are progressing in the present. Now, जो actions present में चल रहे हैं, for example, we are studying right now, है ना, यानी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं. तो this action, studying action is happening right now or it is progressing right now. That is why तो right now है, right now से क्या पता चला बेटा? That this studying action is happening in the present tense. Now we will read what is given in the book. Present continuous tense is used to show an action. Present continuous tense is used to show an action which is taking place at the present time of speaking. यानी जब हम बता रहे हैं किसी को तो वो action same time में happen हो रहा है, यानी that action is taking place at the same time while we are speaking. For example, she is running fast. If someone we see right now in the present tense that is running fast, so we will say she is running fast. Or second example is they are writing letters, means they are writing letters at the present time. They are writing letters right now, right? She is running fast right now. So, in the present, these two actions are happening and we are speaking about these actions in the present time. So, all these actions will come in present continuous tense. फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ बेटा. ऐसे एक्शंस जो प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं, है ना, दैट एक्शंस विच आर हैपनिंग इन द करेंट टाइम, इन द प्रेजेंट टाइम,
ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं तभी वो एक्शंस हो रहे हैं इन द कंटिन्यूअस मोड, इन द प्रोग्रेसिव मोड, देन दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इसी तरह बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट में यानी पहले वो एक्शंस हो रहे थे एंड अभी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। सो द एक्शंस हैव ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, बट राइट नाउ वी आर डिस्क्राइबिंग इट और वी आर स्पीकिंग अबाउट दैट एक्शंस विच टुक प्लेस in the past in the continuous form. All right, so past continuous tense is used to describe an action that was in progress for some time in the past. यानी past में वो actions continuous way में हो रहे थे, यानी progressive mode में हो रहे थे. For example, I was drinking a hot cup of tea. यानी I was drinking यानी मैं पहले पी रहा था चाय. ठीक है. Number second, we were sitting on a bench. So in the past we were sitting on a bench, यानी for a longer period of time we were sitting on a bench in the past. ठीक. Now future continuous tense. So what is future continuous tense? बेटा future में कोई actions कुछ देर के लिए continuous form में होगा. ठीक. An action which will progress in the future for some time. So future continuous tense is used to show that the action will be continuing for some time in the future. यानी future में कोई action कुछ समय के लिए continuous way में happen होगा या progress होगा. ठीक. So उसको बोलते हैं future continuous tense. For example, a cow will be eating fresh grass. यानी कुछ देर बाद या कुछ समय बाद काउ इज गोइंग टू ईट फ्रेश ग्रास. सो दैट इज वाई विल बी लगा है फ्यूचर. नंबर सेकेंड, द गर्ल्स विल बी सिंगिंग स्वीटली. सो इन फ्यूचर यानी कुछ समय बाद द गर्ल्स विल बी सिंगिंग स्वीटली. ऑलराइट, सो आई होप बेटा ये पोर्शन आपको समझ में आया हो बुक का. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द सेम कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम the notes which I have prepared. All right, children, continuous tense, I have prepared this notes for you, so you may kindly copy it down in your grammar copies. All right, so first I'll explain you, then you can copy it down. I will share the pictures on the WhatsApp group. All right, so as we have studied in the book itself on page 78 that continuous tense has three kinds, right? So three types of continuous tense: present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense, right? So तीन टाइप के continuous tense है बेटा, present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense. अब present continuous में कैसे लगेगा बेटा? continuous में I have already told you when we were studying present continuous in grammar. क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस मीन्स ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. बेटा वर्ब का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है. ठीक है, तो वर्ब के साथ ing होगा तो वो कंटिन्यूअस बोला जाता है. ठीक. फॉर एग्जाम्पल प्ले, हमने लिखा प्ले. अब प्ले में अगर हम ing ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा? प्लेइंग. तो प्लेइंग क्या हो गया बेटा? कॉन्टिन्यूअस. राइट. इसी तरह ईट, ईट प्लस ing, ईटिंग. राइट. तो जो भी ing वाले वर्ड्स होते हैं बेटा जिसमें ing लगा रहता है, प्लेइंग, ईटिंग, है ना, स्टडिंग, ये सब ing वाले हैं ना बेटा, तो ये सब क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस. ऑल राइट. ठीक. अब तीन टाइप्स के कॉन्टिन्यूअस टेंस है. फर्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे? इज, एम, आर. ऑल राइट. कौन से हेल्पिंग वर्ब आएंगे? इज, एम, आर प्लस वर्ब की ing फॉर्म. सो लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स हियर. When
आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर। आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा, उसमें सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। ऑल राइट, सब्जेक्ट ढूंढने के बाद यू हैव टू फिगर इट आउट वेदर द सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर और प्लूरल। बेटा सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, है ना। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बेटा? इज, एंड वर्ब की ing फॉर्म। Let's take examples of present continuous tense with singular subject। ये बेटा हम लोग present continuous tense ही कर रहे हैं, ठीक है। present continuous tense में कौन से helping verbs आते हैं बेटा? आपको पता था, is, am and are। तो is किसके साथ यूज होगा बेटा? singular subject के साथ। I किसके साथ यूज होगा? am किसके साथ यूज होगा बेटा? I के साथ। हमेशा am I के साथ ही यूज होता है। and are किसके साथ यूज होगा बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ऑल राइट, सो फर्स्ट वी विल टेक इज, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है। जब भी हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमेशा इज हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके साथ आएगा वर्ब प्लस ing। ऑल राइट, लेट्स टेक एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज माई मदर। सो बेटा माई मदर, मदर यहाँ पे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आया है? सिंगुलर, दैट इज इज आ गया। एंड वर्ब कुक, वर्ब क्या था? कुक, कुक के साथ ing लगा दिया तो कुकिंग हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। सो इज है, इज से हमें पता चला कि प्रेजेंट है, एंड कुक, कुकिंग, कुकिंग से हमें पता चला कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। सो माई मदर इज कुकिंग फूड। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल, he is also singular, singular subject है ना, he is only one person, so he is। अब singular subject है तो हमारा helping verb भी singular आएगा, यानी कि present। he is playing, play plus ing, playing in the park। बेटा हम यहाँ पे सिर्फ अभी present continuous tense की बात कर रहे हैं, और present continuous यानी present में present helping verbs कौन से हैं? is, am and are। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, I am writing on the board। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर बेटा, am के साथ हमेशा I आएगा, am के साथ और कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा और कोई प्रोनाउन नहीं आएगा, सिर्फ am के साथ I आएगा। तो राइटिंग, राइट प्लस ing। आपने एक्सरसाइज पेज नंबर 77 में स्पेलिंग्स वाली एक्सरसाइज कल करी थी बेटा, और उसमें आपने देखा था कि कैसे ing ऐड करते हैं वर्ब में तो ई रिमूव हो जाता है। तो सिमिलरली इसमें यही हुआ है कि राइट, राइट की स्पेलिंग क्या होती है? WRITE, है ना। राइट में ing ऐड करेंगे तो ई रिमूव हो जाएगा, एंड देन वी विल ऐड ing। सो आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। सो दिस सेंटेंस सेज प्रेजेंट, दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट, एंड राइटिंग tells us that this sentence is in continuous form, so present continuous form। अब now when we are taking plural subject, so जब भी हमारा subject plural होगा बेटा तो हम क्या, कौन सा helping verb लगाएंगे? are। Since we are studying about present continuous tense, तो present के सारे helping verbs हमारे sentences में होंगे। present के helping verbs कौन से हैं बेटा? is, am, are। is कहाँ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, am लगेगा I के साथ, और are लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सो व्हेन यू आर गेटिंग अ सेंटेंस, सो फर्स्ट योर वर्क इज टू फाइंड द सब्जेक्ट। व्हेन यू हैव फाउंड द सब्जेक्ट, देन figure it out that if the subject is in singular or in plural। if the subject is in plural, then you have to write plural helping verb, that is are। if the subject is singular, then you have to write singular helping verb, that is। सो इस स्टेटमेंट में बेटा, इस एग्जाम्पल में दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे क्या है बेटा? दे है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, इसलिए हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाया है आर, और प्ले प्लस ing प्लेइंग हो गया। सो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। सो ये सेंटेंस हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जिसमें कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था। दे प्लूरल है, राइट, प्लूरल प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल विल टेक यू।
बेटा यू मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यू प्लूरल प्रोनाउन है, सो यू आर लिसनिंग टू द टीचर। यू भी प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और यू के साथ हमेशा आर लगता है बेटा, इसलिए आर लिसनिंग। लिसन प्लस आईएनजी, लिसन वर्ब है, वर्ब प्लस आईएनजी लिसनिंग हो गया टू द टीचर, इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, सो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट यानी प्लूरल नाउन है। चिल्ड्रन का सिंगुलर क्या होगा बेटा, चाइल्ड, सो चाइल्ड इज सिंगुलर एंड चिल्ड्रन इज प्लूरल, सो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा बेटा, प्लूरल, इसलिए आर लिखा है। देन फ्लाई प्लस आईएनजी, फ्लाइंग kites, all right. So children, we have studied present continuous tense. So now you have to complete the exercise which is given on page 78, which is based on the present continuous tense, this question A, all right. I am going to, children, I am going to read out the question. Complete the following sentences using the verbs given in the bracket in the present continuous tense. So you these 6 fill in the blanks are given and you have to convert or change the verb into present continuous tense and write it in the blank. All right. So this exercise is based on present continuous tense which we have studied just now. So फर्स्ट वन इज आई। सो बेटा आई के साथ बेटा आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एम, राइट। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एम, इसलिए हमने एम लगा दिया। बेटा प्रेजेंट है इसलिए हम सारे हेल्पिंग वर्ब्स क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स। प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, इज, एम और आर, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फिल करना है ब्लैंक्स, और वर्ब यहाँ ब्रैकेट में दिए हैं, इनको चेंज करके आईएनजी फॉर्म में चेंज करके प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब लगा के ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। सो फर्स्ट वन इज आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स। सो आई के साथ हमेशा बेटा एम लगता है इसलिए एम लगा दिया, एम वाला हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। एंड टेक, टेक को हमने आईएनजी फॉर्म में चेंज किया, सो टेक की स्पेलिंग है TAKE, आईएनजी ऐड करेंगे बेटा तो आई रिमूव कर देंगे, ठीक। तो टेकिंग की स्पेलिंग TAKING, ठीक। आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स। सो दिस सेंटेंस हैज बीन चेंज्ड इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकेंड इज अनिकेत। अनिकेत है बेटा सिंगुलर नाउन, अनिकेत इज सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है बेटा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब विच इज। एंड लाफ को हमने चेंज कर दिया आईएनजी फॉर्म में, सो लाफिंग, लाफ दिया हुआ था ब्रैकेट में, इसको कन्वर्ट करना था आईएनजी फॉर्म में। सो अनिकेत इज लाफिंग एट द फनी क्लाउन इन द सर्कस। क्लाउन मीन्स जोकर। थर्ड इज ही क्या है बेटा, सिंगुलर प्रोनाउन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अनिकेत सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो ही के साथ ही सिंगुलर है, सिंस ही इज सिंगुलर देयरफॉर वी विल राइट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है बेटा, इज, और ईट को हमने चेंज कर दिया आईएनजी फॉर्म में तो ईटिंग हो गया। ही इज ईटिंग अ सैंडविच फॉर लंच। फोर्थ वन दे। अब दे क्या है बेटा, दे है प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। दे इज प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, सो आर, और प्ले को हमने आईएनजी फॉर्म में चेंज किया तो प्लेइंग, सो दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। नंबर फिफ्थ जॉन। जॉन इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर है जॉन, एक ही है जॉन, सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, दैट इज। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है इज बेटा। और वॉच को हमने चेंज किया वॉचिंग में, आईएनजी ऐड कर दिया वॉच में, वॉचिंग हो गया, एंड जॉन इज वॉचिंग टेलीविजन। ये सारे स्टेटमेंट्स बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। ये देखिए आप क्वेश्चन अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में गिवन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं उसे हमें चेंज करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये फिल करना है। सिक्स्थ वन इज रिद्धि। रिद्धि इज
सिंगुलर नाउन, सो रिद्धि के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज एंड स्किपिंग। स्किपिंग आपने जैसे पेज नंबर 77 में किया था बेटा, स्पेलिंग्स चेंज करी थी ना, आईएनजी ऐड करते हैं तो स्पेलिंग चेंज हो जाती है कुछ कुछ। सो इसी तरह स्किपिंग में हमने आईएनजी ऐड किया तो एक और पी ऐड हो गया। सो रिद्धि इज स्किपिंग विद द स्किपिंग रोप। So children, this much is for today. Today we will study only present continuous tense, and you have to do this exercise. I am going to send this photograph on your WhatsApp group. So complete the work, and in case you have doubt in present continuous tense, you can ask me on the group. So thank you children, and have a nice day.